देखो मैम ना वो बस प्ले क्या दम गया था ना। नहीं करना कैमरा बार बार बंद हो जाता है रोज, तो शिवानी को भेज दो तो चेक करके, क्योंकि रोज हो रहा है। अभी बंद बंद बोल, अभी नहीं हो रहा, चल नहीं रहा।
ये कर ले ऑन। सारी स्क्रिप्ट रख लो। हाँ मैं वही कर रही हूँ अब। ऑर्डर से यहाँ करवा दो। एंट्री भी करवाऊंगी ना। नहीं नहीं नहीं, साइन तो रहेंगे ना। अपने ही मालूम, फोटो नहीं आता, सबको फोटो आता है। सर मेरा बनवा दो, मैं क्या करूं? क्या? सर स्टार्ट कर सकते हैं? सर स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्यों स्टार्ट करें सिंह साहब ने? हाँ सर, हाँ स्टार्ट कर करो। Hello and a very pleasant morning everyone. Welcome to today's webinar. Thank you all for taking time out and being here today. Before we start the webinar, I request everyone to mute your device to keep the quality of sound functional. If you have any question during the presentation, you may type into the chat box. We will be having question and answer session at the end of presentation. So let's begin. My name is Aarti Makhijani and I feel privileged to extend my heartiest welcome to all the esteemed dignitaries. Respected Shri Dayal Das Detani ji, President Sadhu Vaswani Educational Society. Respected Shri Rajendra Manwani ji, General Secretary Sadhu Vaswani Educational Society. Respected Dr. A.K. Singh Sir, Principal Sadhu Vaswani Autonomous College. Respected Dr. Suman Malik Madam, Director Sadhu Vaswani Autonomous College, HODs of all the departments, all faculty members and participants from various colleges of India to this webinar organized by Department of Commerce. We feel honored to have with us our eminent speaker, a man of distinctive personality, figure of knowledge, and a man with exceptional talent, Dr. Atul Pandey sir, Head of Department of Business Administration, Chairman, Central Board of Secondary Education, Dean, APS University, Riva. Thank you, sir, for your invaluable presence. Our topic for today's presentation is contemporary issues in business management in 21st century. I'm sure we are gonna have learning experience under the expertise of our resource speaker. Aarti, Now, small yes. correction. Sorry, sir. It is not Central Board of Secondary Education. It is Central Board of Studies for Business Administration, Government of Madhya Pradesh. So sorry, sir. Okay, it's So okay. sorry. Now, to formally inaugurate the webinar, I request our Honorable Principal, Dr. A.K. Singh Sir, and our Honorable President, Dr. Shri Dayaldas Detani ji, to offer floral tribute to Ma Saraswati, persona of knowledge. Please, sir. Ma, we pray for your blessings with all humility. Give us wisdom. May all human beings live in harmony and peace. May the truth prevail and the darkness of ignorance be swept away. कॉल कर लिए। हेलो एवरीबॉडी। थैंक यू सर। आज के Yes. इस वेबिनार में मैं दयाल डेटानी, अध्यक्ष साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी, आप सभी प्रतिभागियों एवं स्पीकर्स डॉक्टर पांडे जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक के ऊपर जो बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित है, डॉक्टर पांडे हमें काफ़ी कुछ जानकारियां देंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रतिभागी इससे लाभान्वित होंगे और आगे इस तरह के वेबिनार हमारे कॉलेज में अरेंज होते रहेंगे।
मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पूरी टीम को जो लगातार ये वेबिनार अरेंज कर रहे हैं पिछले 4 दिन से, और आगे भी ऐसे वेबिनार कॉलेज में अरेंज होते रहेंगे। सभी लोगों को इस वेबिनार के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of motivation and encouragement. I thank our President, Dr. Shri Dayaldas Detani ji, for your kind words. May I now request Dr. A.K. Singh, sir, Principal, Sadhu Vaswani Autonomous College, to give a brief introduction of college. Over to you, sir. साधु वासवानी स्वशासी महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा कंटेम्परेरी इश्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी विषय पर आयोजित नेशनल वेबिनार में शामिल आदरणीय श्री दयालदास डेटानी जी, अध्यक्ष साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी, आदरणीय श्री राजेंद्र मनवानी जी, महासचिव साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी, आदरणीय डॉक्टर अतुल पांडे जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, आदरणीय डॉक्टर सुमन मलिक मैडम, डायरेक्टर साधु वासवानी महाविद्यालय, आदरणीय डॉक्टर एएल नारवानी जी, कार्यक्रम संयोजक, आदरणीय डॉक्टर बीडी पांडे जी, कार्यक्रम समन्वयक, सभी सदस्य प्रतिभागी, आप सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साधु वासवानी महाविद्यालय की स्थापना 1979 में संत हिरदाराम साहेब जी की प्रेरणा से हुई। इस महाविद्यालय में 18 विषयों में स्नातक एवं 7 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई कराई जाती है। महाविद्यालय को वर्ष 2014 में नेक द्वारा ए ग्रेड प्रदान किया गया। वर्ष 2016 में महाविद्यालय को यूजीसी द्वारा स्वशासी दर्जा प्रदान किया गया। महाविद्यालय की साइंस फैकल्टी के पीजी डिपार्टमेंट में डीएसटी द्वारा प्रदत्त फिस्ट मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर गतिविधियों में भाग लेने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। हमारे महाविद्यालय में सांस्कृतिक, खेलकूद, एनएसएस, एनसीसी के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। महाविद्यालय में सुपर 30 योजना लागू की गई है, जिसमें चुने गए 30 विद्यार्थियों को महाविद्यालय द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। कई विषयों में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का यह शोध केंद्र भी है। आज के वेबिनार का विषय 21st सेंचुरी के व्यवसाय प्रबंधन में समकालीन समस्याएं आज के संबंध में बहुत ही प्रासंगिक हैं। इस समय पूरा विश्व अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के संबंध में कई गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का सामना कर रही हैं। 21वीं सदी के सर्विस सेक्टर को कार्य क्षेत्र में प्रासंगिक उत्पादन के लिए कुशल वर्कर की आवश्यकता है। इसलिए आज ऐसे संचार कौशल, दक्षताओं एवं उद्यमशील कौशल वाले नेतृत्व की आवश्यकता है, जो व्यक्तित्व की रचनात्मक क्षमता एवं विचारों को एक्टिव आउटपुट में बदलने में सक्षम बनाते हैं। इन सभी मुद्दों को एड्रेस करने हेतु इस विषय में एक्सपर्ट डॉक्टर अतुल पांडे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बीच वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं वाणिज्य विभाग एवं महाविद्यालय की टेक्निकल टीम को इस आयोजन की बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इससे अवश्य ही लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। Thank you, sir, for your informative words. Now, I request Mrs. Pragya Asrani, Madam, Assistant Professor of Commerce Department, to give brief introduction of our eminent speaker, Dr. Atul Pandey, sir. Pragya, Madam. Thank you, Aarti. First of all, good morning to everyone. It's such a good, pleasant morning. First of all, I welcome Dr. Atul Pandey, sir, on behalf of entire SPC team. Welcome you, sir. I'm super excited to speak about such a brilliant personality. You have completed your PhD in 1999, also gold medalist in MBA degree. At present, Dr. Pandey holding so many responsibilities in APS University, Riva, such as Professor and Head, Department of Business Administration, Dean Faculty of Management Studies, Member of IQC Steering Committee for NAC Visit, and also Chairman of Central Board of Studies, Business Administration in Higher Education, MP. You have also conducted many entrepreneurship development programs for managers at National Thermal Power Corporation in Singrauli, MP. As well as you are active in research also. More than 70 of your research papers have been published in various national and international journals. You have also participated as a resource person and invited speaker in national and international workshops and conferences. More than 20 of PhD have been awarded under your guidance. It is such an honor for us to have you today between us. Thank you so much, sir, for being a part of this webinar. I'm very much sure that this webinar will be very informative and fruitful for everyone. Thank you so much. Thank you, Pragya, Over to Madam. Aarti. Thank you, Pragya, Madam. Now, I request Autonomous Cell Controller, Dr. B.D. Pandey, sir, convener of this program, to say a few words on a simple approach of life management through Ramayana. Sir. Oh. परम आदरणीय डॉक्टर अतुल पांडे साहब, प्रोफेसर एंड हेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डीन मैनेजमेंट स्टडीज, टीपीएस यूनिवर्सिटी रीवा, परम आदरणीय श्री डेटानी साहब, अध्यक्ष साधु वासवानी एजुकेशन सोसाइटी एवं माननीय अन्य पदाधिकारी, आदरणीय डॉक्टर के सिंह साहब, प्राचार्य साधु वासवानी कॉलेज, समादरणीय डॉक्टर एल नारवानी साहब, समन्वयक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग, आदरणीय समस्त विद्युत समाज, विद्युत जन देश विज्ञान में जुड़े हुए माननीय कलीग मित्र जो इस महाविद्यालय के रहने में हैं तथा प्रिय विद्यार्थी, आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगा। ये ऐसी बात नहीं है कि जो आप न जानते हो, प्रोफेसर की कोई बात ही नहीं है, विद्यार्थी भी ये प्राय सभी बातें जानते हैं, मुझे ऐसा मेरा मानना है। पर मैं कुछ बातें ऐसा महसूस करता हूँ कि शेयर करना चाहिए।
यह भी आवश्यक नहीं है कि जो बात मैं आपसे कहूँगा उससे आप सहमत हो, आप उससे असहमत हो सकते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि शिक्षा जगत से जुड़े होने के कारण और कुछ अनुभव के कारण कुछ ऐसी बातें जरूर हैं कि जिस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज देश का मूल जो है वो शिक्षा ही होती है। मूल चीज ये है कि यह प्रश्न इसलिए विशेष रूप से उभरा, कल भी चर्चा हुई थोड़ी सी, कि ऐसा क्या कारण है कि लोग अकाउंट्स में अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे IAS अफसर बनते हैं, नेता अभी तक बनते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं तमाम प्रकार की बुराइयां कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वैश्विक स्तर पर, सिर्फ भारत में नहीं, जितने ही रिच देश हैं, जितने ही संपन्न लोग हैं, उनमें सेटिस्फैक्शन लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कुछ साधारण देश में है, जैसे भूटान। तो उसी संदर्भ में मैं कुछ बातें शेयर करूंगा आपसे। एक छोटी सी कहानी तो नहीं है, जो वास्तविक घटना है। ये महाराज जी स्वामी जी हैं, वो दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, पास में एक युवती बैठी हुई थी। बातचीत में यात्रा लंबी थी, उसने पूछा कि महाराज आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मौज करता हूँ, घूमता हूँ। बातचीत में जाहिर है, इन्होंने पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो उसने कहा कि महाराज मैं एक इंटरव्यू देने जा रही हूँ और मेरे जीवन का एक ही सपना है। तो पूछा क्या सपना है? तो उसने 4 बातें उसने बताई। पहला बताया कि मैं चाहती हूँ कि एक प्यारा सा सुंदर सा पति हो, समुद्र के किनारे मकान हो, बढ़िया कार हो और 2 सुंदर बच्चे हो। तो महाराज जी ने उससे कहा कि वैसे ये सब सारी चीजें तो 5-6 साल में हो जाएगी, आप पढ़ी लिखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें आप सुख के लिए जा रहे हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने पूछा इसके बाद आप क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, मेरे जीवन का यही अंतिम लक्ष्य, यही सब कुछ, यही मेरा सब कुछ। तो स्वामी जी ने 3-4 बातें मेरे सामने रखी, वही 4-5 प्रश्नों से जो पूछा वही चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि ये सुख आपको अभी चाहिए कि बाद में, 5 साल बाद जब सब भूल जाए, या कुछ समय बाद? ये सुख आपको इसी स्थान पर चाहिए, किसी खास स्थान पर? ये सुख किसी एक व्यक्ति के साथ चाहिए कि आप जिस व्यक्ति के साथ जब जाना है वही चाहिए? ये सुख बिना प्रयास के चाहिए कि प्रयत्न करने पर चाहिए? अंत में आपस में डिस्कशन के बाद निश्चित तौर पर हम भी, आप भी, सभी लोग भी सहमत होंगे कि हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास सुख हो, बिना प्रयास के हो, स्वाभाविक खुशी हो और सदा के लिए। तो उसका उन्होंने एक निचोड़ बताया, जो उन्होंने लिखा उसमें, कि इसका एक सही तरीका देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति प्रत्येक क्षण प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्येक स्थान पर, जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्थान पर, या कहिए हर व्यक्ति के साथ हर स्थान पर हर परिस्थिति में सदैव सही व्यवहार करता है, तो उसके द्वारा उनका कहना है कि समझिए ये सुख का मूल है या परमात्मा की अभिव्यक्ति उसके माध्यम से होती है, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। अगर शास्त्र में देखा जाए, बिना धार्मिकता के अज्ञान कि जब आप हमेशा प्रसन्न रहें, हर परिस्थिति में रहें, क्योंकि 2 बातें यहाँ मेरे मन में भी आती हैं। एक बच्चा जो आज पढ़ रहा है बीकॉम BA BSc में, यदि अगर ये सोचे कि पहले तो मैं बीकॉम कर लूँ, BSc कर लूँ, तो उसके बाद या तो MBA करेगा या तो लंबी पढ़ाई करेगा, फिर उसकी शादी होगी, या नौकरी करेगा, नौकरी के बाद शादी होगी, फिर
मतलब एक्चुअली कब फिर वो सुखी हो, तब तक जब तक बहुत लेट हो जाएगा तब तक उसकी माँ पूरी हो जाएगी, उसकी बहन घर चली जाएगी, उसका भाई अलग हो जाएगा। कई लोग तो सोच भी सकते हैं। ऐसे ही अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे धनवान सारे बन जाए, चलिए मैंने कहा कि मुकेश अंबानी आदि आप बन गए तो बिल गेट्स आपसे नहीं, अब बिल गेट्स भी नीचे होते रहते हैं, जेफ बेजोस और कौन कौन आ जाते हैं। फिर रतन टाटा की ज्यादा इज्जत है, बिरला परिवार की ज्यादा इज्जत। संत आप बनना चाहें, तमाम संतों को गाली मिलती है, और कुछ ऐसे संत हैं स्वामी विवेकानंद लोग फोटो लगा के रखते हैं। राजनीति में रोज गालियां मिलती हैं, लोगों को कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसे भी नेता है जिनको पैर पकड़ने को लोग तैयार थे और उनका फोटो घर में रखते हैं। आज भी कुछ ऐसे हैं। तो ऐसा लगता है शिक्षक भी है, तमाम हर फील्ड में ऐसे तमाम आईपीएस महाभ्रष्ट हैं, लेकिन तमाम ऐसे ऑफिसर हैं जो दिलों पर राज करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो बदनाम कई बार हो जाती है, फिल्म उसमें ऐसे इतने अच्छे लोग कई लोग हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो कोई भी मुझे ऐसी व्यक्तिगत रूप से फील्ड नहीं लगती जिसमें हम इंतजार करें कि बाद में शुरू हो लेंगे और इसके बाद कुछ नहीं करना रहेगा इस दुख के बाद। तो फिर इसमें आता है कि आखिर कैसे प्राप्त किया जाए कि हम हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। इसके मूल पीछे दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि जो समाज कर रहा है कि नहीं पहले मैं नौकरी कर लूँ, पहले मेरी शादी हो जाए, पहले ये हो जाए, फिर खुश होऊंगा, माँ तब तक बूढ़ी हो जाएगी, ठीक है रह जाएगी, खुश हो लेंगे, पता नहीं उसके साथ रहेंगे भी नहीं रहेंगे, ये भी निश्चित नहीं है। ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो हमारे पहले के लोगों ने इस रास्ते पर चले हैं और सुखी रहे हैं, उनके रास्तों पर चला जाए। तो इस संदर्भ में मुझे सबसे ज्यादा जो रुचिकर लगता है व्यक्तिगत, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सुना है, थोड़ा पढ़ा है, उसमें हमें रामायण और भी गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो साथ में जीते जाओ और प्रसन्न होते रहो, ऐसा मुझे लगता है। सही गलत आपको निर्णय करना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ रामायण में लिखा है आसान तरीका है कि प्रथम मुनि हरि कीरत गाई और तेहिमत चलत सुगम मोह भाई। हर आदमी नदी पार करने के लिए बार बार पुल नहीं बनवा पार होगा, अगर पुल बना है तो पार हो जाएगा, आपको आसान पड़ेगा। वही बात उसका अर्थ है। अब इस संदर्भ में जाहिर है कि श्री रामचरितमानस के महानायक हमारे आराध्य, देखिए दो बातें हैं। एक और बार बार कई बार हमारे मन में भी आता है कि ज्यादातर लोग जैसे रामायण की बात करो, इसकी बात करो, तो इसको काल्पनिक रूप से या इसको ये सोचते हैं कि धार्मिकता का मुद्दा है, ये बुढ़ापे में करेंगे और इसमें इस पर क्यों माने। हम तो वो चीज मानेंगे जिसका हम अनुभव करते हैं। लिखना सच्ची इसमें क्या मेरा दो पहला था कि क्या सारी चीज आप अनुभव की हुई ही मानते हैं। ये व्यक्ति ने दो प्रश्न किया था, उसमें से एक मुझे दोनों याद है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कि पहली बात ये देखिए, जैसे लोग कहते हैं जहर, किसी से पूछो भाई जहर से क्या होता है, तो कहेगा जहर से मर जाते हैं। अब उससे पूछो क्या जहर आपने कभी खाया, तो जाहिर कहेगा नहीं खाया। तो फिर कैसे मालूम पड़ा आपको? तो बोले वो डॉक्टर लोग कहते हैं और सभी लोग कहते हैं जहर खाओ तो मर जाता है। लगा रखा है ये किसी प्रकार हम किस परिवार के हैं, किसके पुत्र हैं, किसकी संतान है, ये भी हमको लोगों ने बताया। तो जितनी प्रमुख चीजें हैं वो सब हम तो मानते हैं। तो फिर हम गैरों की बात माने, उन लोगों की बात माने जो हमारे वेदों में लिखा है, जो रामायण में लिखा है, जो हमारे पिता भी कहते थे, जो हमारे पूर्वज कहते थे, जो भारतीय ऋषि मुनि कहते थे, इन पर हम विश्वास करें कि इन लोगों पर करें जो रोज फेल हो जा रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट हो, चाहे उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हो, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, इन पर विश्वास। तो ऐसी स्थिति में मुझे सही लगता कि नहीं, हम तो अपनों पर ही विश्वास करेंगे, अपने ऋषि मुनियों पर विश्वास करेंगे। हमारे पूर्वज सभी हैं,
चाहे वो राधा कृष्ण जी हो, चाहे अभी कुछ दिन पहले भी किसी की डेथ हुई हो, किसी पार्टी का हो, वो भी हमारा पूर्वज है। यहाँ पूर्वज का बहुत छोटा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि मैं रामचरितमानस को उद्धृत कर रहा हूँ उस रूप में, इस रूप में नहीं कि सिर्फ अंधविश्वास। अब उसमें देखिए कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसी प्रश्न का उत्तर न हो। आज संभव नहीं है कि सब बातों पर चर्चा हो। मैं फटाफट कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ कि सब चीजें तो रामायण में है। शुरू देखिए आप, एक हमारे विद्यार्थियों के लिए खासकर, उसमें शुरू में देखिए लिखा हुआ है कि भगवान राम जब भोजन करते हैं तो भोजन जब वो करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या बचपन में करते हैं। पहली बात तो यह आप देखिए कि अगर वो पढ़ने जाते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुलाई और अल्पकाल विद्या सदपाई। अब क्या हमारे विद्यार्थियों को नहीं सीखना चाहिए कि जब हम पढ़ें तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें ताकि कम से कम समय में हमें थ्योरेटिकल ज्ञान भी हो जाए और प्रैक्टिकल ज्ञान भी हो जाए। हम कोई काम कर रहे हैं और पेश भरना में आए तो कहो, तो लिखा तो है रामायण में कि अल्पकाल विद्या सदपाई। फिर और देखिए आप अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार, अपनी बहन के साथ कैसे रहो। लिखा है कि अनुज सखा संग भोजन करही और माता पिता के साथ माता पिता आज्ञा अनुसरही। भगवान राम अपने छोटे भाइयों के साथ भोजन करते हैं, अकेले नहीं करने की जल्दी, और अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो ये भी तो है लिखा है। उतने नहीं, अपने समाज के लिए क्या करते हैं कि जय विधि सुखी हो या पूर्ण लोग। जिस विधि से अयोध्यापुरी के लोग, उनके गांव के लोग, उनके शहर के लोग सुखी होते थे, जय विधि सुखी हो या पूर्ण लोग करहि कृपा सही संयोग। वो वही काम करते थे जिससे लोग सुखी हो। अपने माता पिता के लिए क्या करते थे ये भी देखिए। आज हम वेद पुराण की बात कर रहे हैं, हमें वेद पुराण से ये तो कम से कम अर्थ लो जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है, इतना तो पढ़ो। उसमें लिखा है कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजय समझाई। खुद पढ़ते थे और अपने भाइयों को सुनाते थे, समझाते थे। और सुबह क्या करते थे उठकर। आज देखिए हमारे घरों में, हमें याद है हमारे बचपन में जब भगवान की दया से अभी हमारे तमाम जानकार लोगों में भी लोग सुबह उठने के बाद पैर छूते हैं। देखा जाए तो उसका एक थोड़ा सा सामान्य रूप हम कॉलेज में भी आने पर करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं मिलने का। लेकिन तमाम घरों में महिलाएं पुरुष एक दूसरे का पैर छूते हैं अपने बड़ों का। उसमें है भगवान राम कहते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु में, माता पिता गुरु को भगवान श्री राम प्रणाम करते थे, उनका पैर छूते थे। ये कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें आपको असुविधा होगी? क्यों नहीं प्रसन्न रहेंगे? जब उनके पिताजी प्रसन्न है, उनकी माँ प्रसन्न है, उनका भाई प्रसन्न है, तो बचपन में पढ़ते समय प्रसन्न नहीं हो। अलग से थोड़े कि जब विवाह हो जाएगा तब प्रसन्न होंगे, जब राजा बन जाएंगे तब प्रसन्न होंगे, शुरू से ही प्रसन्न। आगे भी है कि सोचिए उनके पिताजी कितना उनको चाहते थे। जब विश्वामित्र जी उनको लेने आए तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे महाराज, हे मुनि, मैं चौथे पर में मुझे पुत्र प्राप्त हो, आपने विप्र वचन नहीं कहो विचार। आपने सही सोचकर वचन नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं राम देत नहीं बने गोसाई कहते, सब सुख प्रिय मोहि प्राण पिनाई, राम देत नहीं बने गोसाई। सोचिए एक पिता अपने पुत्र को कितना प्रेम कर रहा है, इसका मतलब उसका आचरण अच्छा रहा होगा ना। अगर आप उन्हें सामान्य समझे तब की बात बता रहे। आगे भी आप देखिए, बचपन हो गया, पढ़ाई हो गई, माता पिता से व्यवहार हो गया, भाई से हो गया, परिवार वालों से हो गया, गांव समाज के लोगों से हो गया। आगे लिखा हुआ है कि डिसिप्लिन में कहता है। जब महाराज विश्वामित्र जी इनको लेकर के जनकपुर जाते हैं स्वयंवर के लिए, तो वहां पर भगवान राम और लक्ष्मण जी, राम जी से पहले लक्ष्मण जी सुबह उठ जाते हैं और गुरु जी से पहले दोनों भाई उठ जाते हैं। उठे लखन
निस्विगत सुन, और गुरु से पहले जगत पर जागे राम सिया। गुरु से पहले जगत, हम सोते कैसे हैं ये हम सभी लोग जानते हैं। उसमें मैं अलग नहीं हूँ, आप अलग नहीं हो, लेकिन फिर भी विचार करने योग्य है कि क्यों नहीं हम उनकी नकल करते, क्यों हम दूसरों की नकल करते हैं। ये तो चलिए फिर भी ठीक है कि हम बचपन में अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उनकी इज्जत करेंगे, उनका चलो किसी ने कह दिया पैर भी छू लेंगे। लेकिन एक आप विपरीत परिस्थिति देखिए, भगवान श्री राम को अयोध्या का राज्य तिलक की बात हो जाती है। कैकेयी की रात में अपने दोनों वचन महाराज दशरथ से दे देती हैं कि राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। ऐसी परिस्थिति में राम जी जब आते हैं बुला करके वहां, तो कहते हैं माता कैकेयी से, वो बता देती हैं, उन्होंने पूछा कि हमारे पिताजी बीबल पड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कि माता पिताजी कुछ बोल नहीं रहे मुझसे क्या अपराध हो गया है। तो वो कहती है कुछ नहीं बेटा, देखिए कठोर थी। उन्होंने कहा कुछ नहीं, मैंने बस 2 वचन थे मांग लिए, तुमको बन जाना है और उनको। तो बोले बस इतनी छोटी सी बात में पिताजी इतने दुख है, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि उसके पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसकी चौपाई है इस तरह। मुझे हाँ लिखा है कि राव धीर गुण उदधि गाधु भा मोहिते कुछ बड़ा अपराध। मतलब राजा तो माँ बड़े धीर हैं, समुद्र की माँ, वो कैसे इतनी छोटी बात में घबरा जाए, मुझसे कोई अपराध हो। सोचिए एक पिता के प्रति ऐसा भाव होना जिसने उनको वनवास दे दिया हो, राज तिलक को देने का, और तुरंत चल देते हैं और अपनी सगी माँ के पास जब जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पिताजी मोहि कानून राजू, हे माँ मुझे मेरे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है। बरस 4 बस कर वचन प्रमाण, मैं 14 और छोटा करके बताया, 10 पहले 14 कट्ठे नहीं बताया, बोला 4 वर्ष और 10 वर्ष गया और फिर आ जाऊंगा पिताजी की बात करके। अपनी माँ को धैर्य दे रहे। जब वन में प्रवास करना होता है, सीता जी को मन देखिए दुख के समय वो अपनी पत्नी को अलग करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी पत्नी को कष्ट। पत्नी से भी प्रेम की बात वहां बताते हैं। भगवान राम स्वयं माता जानकी को पुष्प चुन करके जब वनवास में रहते हैं तो उनके बालों में लगाने के लिए, जुड़ा में लगाने के लिए कुसुम ले खिलाते हैं। तो पत्नी से भी प्रेम कैसे किया जाना चाहिए। एक रानी का व्रत उन्होंने ही शुरू किया, तो पत्नी के साथ संबंध अपने भाई को भी मना कर रहे हैं और जंगल चले जाते। इतने नहीं, जात पात की बात केवल गले लगाया हुआ, निशान रात को गले लगाया, जात पात की बात नहीं करते। 60 में कर देता हूँ, लंबा हो जाएगा। और देख लीजिए बानर को, बानर ही माने सुग्रीव को अपना मित्र बनाते, बाली को एक बाण से मार देते, एक ही बाण प्राण हर दिया। जब वो सामने आता है कहता है कि प्रभु आपने मुझे बहेलिया की तरह मार दिया, आपने अन्याय किया। उसको कहते हैं भगवान कि तुम अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिए, उसका राज्य ले लिए, इसलिए तुम पापी हो, मैं तुम्हें मार दूं। तो हंसने लगता है। वो कहता है कि प्रभु आप कैसी बातें करते हो। अब यह है कि आप स्वामी हैं, कहिए आपने कहा है कि जब मेरे सामने कोई आता है तो उसके जन्म भर के पापों को मैं हर लेता हूँ। तो भगवान का मन पिघल जाता है और उससे कहते हैं कि हे बाली अचल कर्म तुम राखो प्राण, तुम अगर जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे प्राण को अचल कर देता हूँ, अमर कर देता हूँ। तो पैर पकड़ लेता है, होती है। जटायु को एक भजन है जिसका ये अर्थ है कि ये हमारे राम क्या सोचते हैं। जटायु को की अंतिम क्रिया करते हैं, अपने पिता की क्रिया नहीं करता, अपनी गोद में उनकी गोद में जटायु करता है गुजरात। विभीषण के आने पर उसका राज तिलक करते हैं, रावण को जीतने के बाद उसका राज्य उसके भाई को ही दे देते हैं। मेघनाथ को दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार होता है। मेघनाथ की मृत्यु होने पर उसकी मृत शरीर को ससम्मान उसकी मां के पास, पत्नी के पास पहुंचाया जाता है।
मंदोदरी राम की मर्ग पर जब आती है तो खुद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उनको प्रणाम करो। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैरू राम बड़ाई करें, जो उनके दुश्मन है वो भी उनकी बड़ाई करें। लेकिन हम कई बार इसको समराइज कर देते हैं। हमारा ये कहने का ये मतलब था कि देखिए, यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें इसी क्षण हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए बिना भय के, बिना संकोच के, यदि हम अपना कर्तव्य कर्म करते चले और सुखी होते चले। अपनी माँ के हिस्से का माँ को आज दे दें, कल का कोई भरोसा नहीं। अपनी बहन का हिस्सा उसको दे दें, मतलब जो जीवन आज इस कॉलेज में हम सीनियर टीचर हैं तो उसके जूनियर के हिस्सा दे दें, अपने विद्यार्थी को उसका हिस्सा दे दें, अपने बराबर के लोगों का जो उनका सम्मान, उनका आदर है, उनका हिस्सा उनको दे दें। और अगर बाइक में कोई भूल आपस में हो जाए तो भी एक दूसरे को समायोजित करना ही मेरे ख्याल से मेरे आराध्य भगवान राम की यही शिक्षा है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको ना तो देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा मानना एक अलग मैटर है, लेकिन मैं तो सामान्य ज्ञान के हिसाब से सोचता हूँ कि यदि आप इस पर विचार करें तो रामायण में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, हित, दुश्मन, पति, पत्नी, माता, पिता, गुरु, परिवार, समाज, राष्ट्र, जिसके लिए प्रेम न लिखा हो, जिसके लिए सार्थक कर्तव्य न लिखे हुए हो। क्यों? क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हमें ये रास्ता आसान पड़ेगा, नहीं तो मानस रोग लिखा हुआ है। उत्तरकांड के अंत में मानस रोग है, लाखों मानस रोग है। उसमें से कुछ प्रमुख है कि मोह सकल व्याधिन कर्मूला, अज्ञानता जो है सारे दुखों की जड़ है। काम, बात, पुत्र की इच्छा, मतलब पुत्रेष्णा, पुत्रेष्णा मतलब पत्नी दूसरी मां जाती है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, धन की इच्छा, कीर्तेष्णा, यश की, ये तीन ऐसी चीजें तिजारी रोग की तरह है, ये कभी नहीं समाप्त। पुत्रेष्णा, कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये साधु मुनि ऋषियों को भी छूती है। हम आप साधारण मनुष्य हैं, साधारण छात्र हैं, साधारण शिक्षक हैं, हमें बेहतर होगा, मुझे आसान लगता है, यही एक रास्ता मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि जिसका ज्ञान है मैं वही कहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रामायण में श्री रामचरितमानस में जो रास्ता हमारे आराध्य ने दिखाया है, जो रास्ता हमारे महानायक ने दिखाया है, वो रास्ता हमारे लिए आसान होगा। आप हमारी बात से असहमत हो सकते हैं, संभव होना भी चाहिए, इसलिए आपका हक है, क्योंकि ये मेरी बात थी, मैंने इतने में रखा। विशेष रूप से मैं अपनी वाणी को विराम दूं, उसके पहले मैं प्रोफेसर अतुल पांडे साहब से क्षमा चाहूंगा, उनका इतना समय खुद उपयोग कर लिया है, और अंत में आपको विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए आप आज बोलेंगे और हमें क्षमा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your inspirational words. Today we have learned to see life with different perspective. I hope everyone will certainly implement these small things which will make bigger difference in life. May I now request our esteemed speaker, Dr. Atul Pandey, sir, Chairman, Central Board of Studies, Higher Education, MP, to throw light on today's topic, contemporary issues in business management in 21st century. Please, sir. Thank you, Aarti. First of all, I am honored to be with you all here, and I extend my gratefulness to the chairman, Sri D.D. Detani ji, then patron, Sri Rajendra Manwani ji, principal of the college, Dr. A.K. Singh, coordinator of this event, Dr. A.L. Narwani ji, and the convener of this event, my elder brother,
Dr. B.D. Pandey ji. Don't take it otherwise. We are not related to each other in any way because our surname resembles. I call him elder brother because in academics we met sometimes in Bhopal, and the kind of relationships we have built, he always gives me his blessings. So I appreciate that. I honor him for that. So thank you very much, Dr. B.D. Pandey ji, for giving me this opportunity to interact with the faculty members and students of your college. और आज का दिन बहुत ही पावन दिन है. मैं सर्वप्रथम माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूँ. आज नर्मदा जयंती है और उनके आशीर्वाद से इस काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में हमें न सिर्फ जल मिलता है, जीवन मिलता है, बाकी बहुत अच्छी प्रकृति की शरण में भी हम रहते हैं और एक हमारा उत्तरदायित्व भी है उनके प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति. तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ. अपने देश में माँ गंगा को सबसे पवित्र माना गया. देवी और माँ की तरह हम उन्हें पूजते हैं. मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए अन्य राज्यों में जहाँ माँ नर्मदा का प्रवाह है, वहाँ उन्हें माँ गंगा की ही तरह पवित्र और पूजनीय माना गया. हम लोग कहते हैं माँ नर्मदा का तो कण कण शंकर है. एक कण में भी जहाँ वो छू जाएं वो सब शंकर भगवान है. आज उनकी जयंती है. मैं उनके आशीर्वाद से आज की अपनी बात प्रारंभ करता हूँ. मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, 10 सेकंड का. मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ विषय में आने से पहले. आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है. जी सर. जी सर. ओके. तो आप सभी को प्रणाम और एक बार पुनः आपसे आपके सामने अपनी बात रखने के लिए, यह अवसर देने के लिए आप सभी का धन्यवाद. और अपनी बात को आज शुरू करते हैं हम. आज का जो थीम है वो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी. इस विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा और कोशिश करूंगा, थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, 12 लगभग बजने को है. मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में समाप्त करने की. इतना समय है क्या मेरे पास? कितना समय मिलेगा? हाँ सर जी, मिल जाएंगे. बिल्कुल. अच्छा, थैंक यू. तो इस विषय की हम बात शुरू करते हैं. और कैसे ये बात सामने आई, हालांकि जब हम कंटेम्परेरी इश्यूज की बात करते हैं तो बात ये आती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी भी विषय को प्रभावित करने वाले हैं. तो बिजनेस मैनेजमेंट के संदर्भ में जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी तो पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, 20 वर्ष गुजर चुके हैं और इन 20 वर्षों के बाद भी 80 वर्ष बाकी हैं. जब 21वीं सदी के पहले 10 वर्ष पूरे हुए, एक डिकेड पूरा हुआ,
तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आपने सुना होगा, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को मक्का ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन कहते हैं विश्व में, जहां मैनेजमेंट एजुकेशन में सबसे प्रतिष्ठित नाम है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। उनका एक बहुत प्रतिष्ठित जर्नल भी आता है। तो उन्होंने एक रिसर्च किया, एक सर्वे किया, और पूरे विश्व के जो टॉप के मैनेजमेंट थिंकर्स थे, फैकल्टी थे, इन लोगों के बीच एक स्टडी किया और पता लगाया कि आने वाली 21वीं सदी में जो बचे हुए 90 साल हैं, अब तो 10 वर्ष और भी बीत गए, तो व्यवसाय प्रबंधन के क्षेत्र में, बिजनेस मैनेजमेंट के फील्ड में ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो प्रभावित करने वाले हैं और जिनके ऊपर हमको शोध भी करनी पड़ेगी काफी आने वाले दशकों में, आने वाले डिकेड्स में। और इसके ऊपर एक स्टडी किया उन्होंने, और जब उनके पास बहुत सारे रिस्पांस आए रेपुटेड फैकल्टीज के, रिसर्चर्स के, तो उन्होंने 5 बड़े फोकल एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो आने वाले समय में दे आर गोइंग टू बी की इन्फ्लुएंसर्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी एंड आर आल्सो लाइकली टू स्पैन अ गुड शेयर ऑफ रिसर्च। तो ये 5 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर आज हम प्रमुखतः बात करेंगे। मेरी जब बात आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते, ये ऑलरेडी आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। और उन जो बातें मैं करूँगा उसमें शायद थोड़ा सा कुछ आपको नया अंश भी मेरी ओर से मिले। तो आज का विषय आपका जाना पहचाना विषय है, बस इसकी तरफ एक नए नज़रिए से थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और हम जहाँ पर जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर इसके किसी भी एक पक्ष में यदि अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे तो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, उसकी प्रगति के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बिजनेस मैनेजमेंट और उससे जुड़े हुए लोग, चाहे वो व्यवसाय कर रहे हों, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट की एजुकेशन से जुड़े हुए हों, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये एक कदम होगा। साधु वासवानी कॉलेज को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हमारे प्रोफेसर पीके मिश्रा जो यहाँ के डीन थे पहले बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में, यदि मुझे ठीक से याद है तो उनकी मिसेस आपके कॉलेज में थी और संभवतः वो प्राचार्य के दायित्व में भी रहीं। और आपके कॉलेज की एक अच्छी प्रतिष्ठा है मध्य प्रदेश में, विशेषकर सेंट्रल इंडिया में, भारत के परिक्षेत्र में। और आपको नैक का A ग्रेड मिला हुआ है, वो अपने आप में ही एक आपकी प्रतिष्ठा को बताने वाला है। तो यदि हम इस क्षेत्र में कुछ अच्छे कदम उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आपने एक वेबिनार आयोजित करके इस तरह के विषय में चर्चा को प्रारंभ किया, ये अपने आप में ही एक साधुवाद की बात है। तो मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ आगे करता हूँ। और मैंने थोड़ा सा अपनी पीपीटी को अलग स्टाइल में ऑर्गेनाइज किया था। मैंने अभी आपको बताया कि 5 विषय हैं। तो पहला विषय जो सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च में आया होगा, सर्वे से आया होगा, क्या आप में से कोई बता पाएगा? मैं 10 सेकंड का समय देता हूं कि क्या हो सकता है वो, जो पूरे विश्व परिदृश्य को आने वाली इस सदी में प्रभावित कर रहा है और करेगा। Ten seconds if anyone can give any answer in this context. ओके, अब मैं खुद अपनी बात रखता हूँ। ग्लोबलाइजेशन को एक पहली फोर्स आइडेंटिफाई किया गया
और आप सब जानते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं। विशेषकर जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पिछले 1991 से आप सब मैनेजमेंट, कॉमर्स या इकोनॉमिक्स पढ़ते रहे हैं और 1991 में एक बड़ा परिवर्तन भारत देश में हुआ जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई और जिसमें हमने जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ को साइन किया और एक एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और न सिर्फ भारत में बल्कि 100 से अधिक देशों में पूरे विश्व में ये एलपीजी और गैट की बात आई और पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की तरह परिवर्तित होने लगा। और जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस थे या जो जिस देश के पावरफुल कॉरपोरेशंस थे जो सफल थे अपने क्षेत्र में, they all started expanding their business beyond international boundaries। भारत के भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने, अंबानी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने, विप्रो, इन्फोसिस, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने विदेशों में भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से प्रसार किया। तो ग्लोबलाइजेशन के पीछे 2-3 प्रमुख बातें थी ग्लोबलाइजेशन के पीछे। तो पहली बात थी द स्प्रेड ऑफ मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पूरे विश्व में जो इकोनॉमिक सिस्टम बना वो मार्केट बेस्ड बना। अधिकतर हिस्से में हम सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगे। भारत देश मिक्स्ड इकोनॉमी का देश है जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट ज़्यादा है, दोनों है। पर आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि धीरे धीरे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं। कैपिटलिस्ट का शेयर बढ़ता जा रहा है। वो किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की सरकार रहे, पर एक देश के रूप में हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक सिस्टम्स के प्रभावशील या ज़्यादा प्रभावी होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन और पावरफुल तरीके से हुआ। जैसे अमेरिका जैसे पावरफुल देश जो विश्व में बहुत तेजी से डोमिनेट करते हैं हर क्षेत्र में, उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन जैसे विषय को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों या उसके पहले बिल क्लिंटन रहे हों, ये पिछले मैं 15-20 सालों की बात कर रहा हूँ, ये सब भारत की ओर बहुत तेजी से दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बिकॉज इंडिया इज ए ह्यूज मार्केट। हमारी जो एक पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, जो अक्सर इकोनॉमिस्ट की भाषा में, सोशलिस्ट की भाषा में और विद्वानों की भाषा में ये बात आती रही है कि ये पॉपुलेशन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि वो पॉलिसी फेल हो जाती है। लेकिन एक और संदर्भ में ये पॉपुलेशन ही हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन के आगे आ रही है। पूरे विश्व के लिए भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पर चाइना के अंदर उनकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हैं, विदेशों की हैं, लेकिन फिर भी चाइना का अपना शेयर काफ़ी बड़ा है। इंडिया में भी ये बातें काफ़ी हैं, पर इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अनटैप्ड मार्केट था। और आप सब ने देखा होगा पिछले 15-20 सालों में कितने ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एफएमसीजी के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, वाइट गुड्स के सेक्टर में, सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया के अंदर आ गए हैं और आते चले जा रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट बहुत तेजी से रहा और आने वाले समय में भी ये रहना है। हमारे जैसे भारत जैसे देश में इसको बहुत प्रभावशील तरीके से रहना है। दूसरी बात है फॉलिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड एफडीआईज। तो ये जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ के बाद ये एक चलन चल पड़ा कि हम विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो बैरियर्स उनको हटाते चले जा रहे हैं। आप खुद पढ़ते होंगे, देखते होंगे, इवन आप देखेंगे कि डिफेंस के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारा एफडीआई अलाउ किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब रेलवेज जैसी ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक सेक्टर में जो बहुत प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन क्षेत्रों में भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप भोपाल के बहुत करीब हैं, भोपाल में ही हैं, आप खुद देख रहे होंगे भोपाल का हबीबगंज स्टेशन
प्राइवेटाइजेशन का कितना बड़ा मॉडल है और कितनी तेजी से वो बदल रहा है। तो इस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर या प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक ग्लोबलाइजेशन की तरह आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी कई भारत के ऐसे ब्रांड्स हैं जो विदेशों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारे इकोनॉमिक्स, हमारे प्लानर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स इस कोशिश में लगातार लगे हुए हैं कि हम कैसे जो इंडिया की स्पेशलिटी है, जो इंडिया की प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया के जो ब्रांड्स हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचाएं। एक तीसरी बात जो बहुत जबरदस्त हुई, जिसकी वजह से ये पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा, वो है ईज एंड इकोनॉमी इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या वीडियो कॉलिंग, या जैसे मैं आज आपके साथ जुड़ा हूँ जूम ऐप, इस तरह के मॉडल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये चीज़ें बहुत आसान हो गई। ईमेल के माध्यम से, डिफरेंट मोबाइल ऐप्स के माध्यम से बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, टेलीविजन के नेटवर्क्स के माध्यम से। इवन ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई। हम कई देशों में हम जाने लगे और हमारे लोग जाने लगे और वहाँ से भी लोग आने लगे। इवन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी प्रभावित हुआ इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से 1991 के बाद, और CBCS जैसे कोर्सेज आ गए जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स विदेशों में जाने लगे, और विदेशों में जब जाते हैं तो उनकी डिग्री का, उनकी मार्कशीट्स का कंपैरिजन होता है, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो क्रेडिट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमने भी अपने कोर्स स्ट्रक्चर को, अपने सिलेबस को उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करना शुरू कर दिया। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मैं एयर कनेक्टिविटी की या वाटर बेस्ड कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, जो इंटरनेशनली हमको कनेक्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा हो गया। तो इन सब वजहों से ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेजी से बढ़ा, और आने वाले समय में भी उसको बढ़ना है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि भारत देश, जब हमारे यहाँ हमारे ऋषि मनीषी कहते थे, अभी BD पांडे सर ने बहुत अच्छी बातें रखी कि भारतीय संदर्भ में लाइफ मैनेजमेंट के, और हम एक बहुत शुरू से सुनते आ रहे हैं अपने बड़ों से, सर्वे संतु निरामया। भारत अब उस सर्वे संतु निरामया के मैसेज को पहुंचा रहा है विश्व के बहुत सारे देशों तक। भारत कोविड-19 की मेडिसिन को पहुंचा रहा है। ब्राजील जैसे देश के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि कोविड से कोई इस विश्व को जल्दी से जल्दी मुक्त करा सकता है तो वो भारत देश है। तो अब इस संदर्भ में जो मार्केटर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए अप्रोच क्या है? उनकी अप्रोच है ग्लोबल अप्रोच, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स आ चुके हैं आपके घर तक। जो आपके घर के, आपके गांव के आसपास के लोग जो दिए बनाते थे मिट्टी के, अब उनको भी चाइनीज दिए से कॉम्पीट करना पड़ता है दीपावली के समय। फॉरगेट अबाउट दी लाइटिंग्स, जो हम घरों में लाइटिंग्स लगा रहे थे, वो तो आप जानते हैं 70 to 80% चाइनीज हो चुकी है। अभी जरूर थोड़े समय में जब चाइना से हमारी तलखी बढ़ी तो हमने उनकी चीज़ों को नो करना शुरू किया। गवर्नमेंट ने भी हमको परस्यू किया और पर्सनली भी लोगों ने किया। इनफैक्ट आज मैं ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि मैंने भी उस समय जब चाइना से हमारा युद्ध की स्थिति बन रही थी तो मैंने गुस्से के मारे चाइना का ये जूम ऐप भी अनइंस्टॉल कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि वो जो ओनर हैं वो तो विदेश में, अमेरिका में रहते हैं, और हम चाइनीज नहीं, इस तरह के बहुत पेपर्स में आया। लेकिन इनिशियली ये मालूम पड़ा कि जूम ऐप इज चाइनीज, तो जितने मोबाइल ऐप्स है हमने भी डिलीट किया। इसलिए 5-10 मिनट दोबारा से इंस्टॉल करके आईडी डालने में समय लग गया। खैर, तो जो ग्लोबल ब्रांड्स आ चुकी हैं हमारे अंदर, लेकिन नीड्स लोकल हैं। देखेंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अपनी एड कैंपेन्स को बिल्कुल लोकल कॉन्टेक्स्ट तक डिजाइन करते हैं। मुझे कुछ साल पहले का एक कैंपेन याद है, कोका कोला का। उससे बहुत सारे कैंपेन्स आए थे। कोक का कैंपेन, जिसमें आमिर खान उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, और एक गांव का संदर्भ दिखाते हैं कि गांव में एक टपरी है, छोटी सी दुकान है, वहां पर 2 यंग लड़कियां जो ग्रामीण परिवेश की हैं वो पहुंचती हैं और शॉपकीपर से कहते हैं कि भैया 2 कोका कोला देना।
और पूछती हैं क्या दाम क्या है, तो शॉपकीपर जो रहता है दुकान वाला वो बोलता है 6 रुपया। एक टिपिकल MP UP का जो गांव का बैकग्राउंड है वैसे दिखाया गया, क्योंकि वही टारगेट ऑडियंस थी उस एड कैंपेन में। ऐसे उन्होंने साउथ के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखाया, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बनाए उन्होंने एड कैंपेन्स, क्योंकि वो रूरल मार्केट तक जा रहे थे अपनी ब्रांड्स को लेकर के। तो वो बोलता है 6 रुपया। इतने में एक युवा व्यक्ति जो गांव का सफारी सूट पहने हुए, हाथ में तंबाकू घिसते हुए ऐसे पहुंचता है, एक छोटा सा ब्लैक कलर का पर्स लिए हुए, हाथ में बैग सा लिए हुए, मूछ थोड़ी सी रखे हुए, वो आमिर खान है। और वो उस शॉपकीपर से बोलते हैं, जैसे ये बात सुनते हैं वहीं खड़े रहते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं पांडव कितने थे भैया? तो वो शॉपकीपर बोलता है कि 5। फिर वो अपने हाथ की 5 उंगली दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये उंगली कितना है भैया? तो थोड़ा अचकचाते हुए बोलता है 5। तो बोलता है जो झापड़ मार देंगे तुम्हारे गाल में तो छपेगा कितना भैया? तो वो और घबराते हुए बोलता है कि 5। फिर वो पूछते हैं तो बताओ जरा कोका कोला कितने का है भैया? तो वो बोलता है 5। तो वो थोड़ा सा पढ़ा हुआ गांव का व्यक्ति जानता था कि कोका कोला की कीमत जो पूरे प्रमोशनल कैंपेन से आ रही है, जो गांव के लिए स्पेशली 200 ml पैक लॉन्च किया गया था, ये कुछ साल पुरानी बात है, दैट वाज प्राइस्ड एट ₹5 और ये शॉपकीपर 6 रुपए चार्ज कर रहा है। तो कोका कोला जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो अमेरिका की कंपनी है, जो मोर देन 100 कंट्रीज में इस समय ऑपरेट कर रही है, जब इंडियन मार्केट के अंदर में आती है तो वहाँ की लोकल नीड्स तक को एड्रेस करती है अपनी ग्लोबल ब्रांड के साथ, और इस तरह से प्रमोशनल कैंपेन को डिजाइन करती है। एक सेलिब्रिटी को लेकर के आती है जिसको लोग पहचानते हैं, जिससे लोग उस एड की तरफ अट्रैक्ट हों, और अपना मैसेज देके जाती है कि कोका कोला फॉर 200 ml पैक फॉर द रूरल कस्टमर्स इज प्राइस्ड एट ₹5, राइट? तो इसी तरह से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एक लोकल अप्रोच लेकर के आती हैं। हमको भी हमारी जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो हमारी लोकल ब्रांड्स हैं, उनको भले हम अपने घर गांव में ही बेच रहे हो, पर उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा। और यदि हम अपनी ब्रांड्स को लोकल लेवल से रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी अप्रोच होगी। ये इसको ग्लोबल अप्रोच के फॉर्म में लेना होगा। और ग्लोबलाइजेशन में एक नई बात और आ गई, जो आजकल लेटेस्ट में बहुत बात करने लगे, हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात करने लगे। हमारे भारत देश में भी डी ग्लोबलाइजेशन की काफी बात हो गई। हमारे यहाँ डी ग्लोबलाइजेशन के लिए जो बहुत पॉपुलर शब्द है, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय बहुत बोलते हैं, वो है आत्मनिर्भर भारत। और अभी हमारी जब चीन और अमेरिका जैसे देशों से थोड़ी कुछ मुद्दों पर तल्खी बढ़ी, तो उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात को बहुत तेजी से प्रमोट किया, जिसमें हम अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को और स्ट्रांग बनाएंगे। हम कई मुद्दे पे इंटरनेशनल कंपनीज को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमने वो जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ को साइन कर रखा हुआ है। उससे हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी के हिस्से हैं। लेकिन हम अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स का सशक्तिकरण कर सकते हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स का सशक्तिकरण कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इनके लिए अभी राष्ट्रीय स्तर पर अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट आया, और अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आत्मनिर्भर का जो नया प्रोग्राम बनाया, उसमें स्टेट के यूनिवर्सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स स्टैब्लिश कर रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स का मतलब है जहां पर जो नए उद्यमी हैं, उनके पास जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, स्टार्टअप्स स्टैब्लिश करने का कॉन्सेप्ट है, उनको हम प्रमोट करें, उनको हम सारी फैसिलिटीज दें, ताकि तेजी से हमारा देश आत्मनिर्भर बने और हम ग्लोबल ब्रांड्स के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाए। हम कॉम्पीट करें, चाहे हमारी धरती पर कॉम्पीट करें या धरती के बाहर कॉम्पीट करें। तो ये पहली एक फोर्स है जो ग्लोबलाइजेशन जो आई। दूसरी इंपॉर्टेंट फोर्स जिसको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने आइडेंटिफाई किया, जो आने वाली सेंचुरी में महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है, चाहे जो भी क्षेत्र हो। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, अभी मैं कल मॉर्निंग वॉक के समय अपनी कॉलोनी में वॉक कर रहा था, मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी, तो बगल से एक काम वाली बाई निकली। आपके हाथ में स्मार्टफोन हो चाहे ना हो, उनके पास आजकल है,
और वो उस स्मार्टफोन में वीडियो कॉल करते हुए निकली। थोड़ा सा एक ग्लिम्स हमको लगा, सुनने में भी आया। वो अपने घर में किसी को पूछ रही थी कि ये घर के सामने मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ गई। मैंने अपनी वाइफ को बोला भी कि देखो ये काम वाली बाई है और वीडियो कॉलिंग करती हुई जा रही है। सी हाउ टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड अस। फ्यू इयर्स बैक वी नेवर थॉट, आज से 20 साल पहले जब मैं हॉलीवुड की मूवीज देखता था तो उस मूवीज में मोबाइल फोन लिए हुए एक्टर्स को देखता था तो कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने शहर में अपने घर में रह के इन मोबाइल फोन्स ले करके इस तरह से बात करूंगा। अब तो स्मार्टफोन है और उसकी एक्सेस, मेड सर्वेंट का एग्जाम्पल देने का मतलब है कि लोवेस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तक उसकी एक्सेस है एंड वेरी इकोनॉमिकल कॉस्ट इट इज अवेलेबल। वो अफोर्ड कर सकते हैं। उनकी इनकम क्या होगी? बहुत कम होगी, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, लेकिन उन चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में हमको प्रभावित कर रही है और करने वाली आने वाले समय में। आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का है। कुछ दूसरी आवाजें आ रही हैं, उनको म्यूट कर देंगे प्लीज। So technology is dominating and making its presence felt almost everywhere. हर क्षेत्र में, चाहे जो भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का डोमिनेंस बढ़ रहा है। चाहे वो क्षेत्र बिजनेस का हो, चाहे वो मेडिकेयर का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, स्पोर्ट्स का हो, सोसाइटी का हो और इवन गवर्नेंस का हो। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनने जा रहा है। देखिए, आप मेडिकेयर में टेलीमेडिसिन की बात होने लगी। एजुकेशन देखिए, कोविड के अच्छे बुरे प्रभाव हैं तो कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से प्रमोट हो रहा है। स्पोर्ट्स के अंदर भी टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त यूज है। सोसाइटी के डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में बहुत यूज है। गवर्नेंस में भी ई गवर्नेंस बहुत तेजी से आया, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, चाहे वो सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस की बात हो या रिसेंट में फास्टैग्स की बात हो। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का रोल है। तो बिजनेस क्षेत्र में तो नेचुरली है ही। सो दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर रहा है ये हर तरह के बिजनेस में। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का ट्रेड हो, चाहे वो गारमेंट्स का हो, सर्विसेज का हो। सर्विसेज सेक्टर में तो जबरदस्त रोल है। वो बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, ट्रेडिंग में, एग्रीगेशन में। अब देखें जो पेटीएम मॉल जैसे कॉन्सेप्ट्स आ गए या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए और सोशल मीडिया पर जो कस्टमाइज्ड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। आप मोबाइल फ़ोन पे क्रिकेट का स्कोर देख रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि आप नई बाइक खरीदना चाहते हैं, एक आध बार आपने सर्च किया तो नए बाइक के एड्स की झड़ी लग जाएगी। अब उनको पता है कि आपको नई ड्रेस खरीदनी है, आपने ऑनलाइन सर्च किया है तो आपके मोबाइल पे कस्टमाइज उसके एड्स आने लग जाएंगे। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो डिफरेंट फील्ड्स में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में देखिए जबरदस्त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, मोबाइल ऐप्स का यूज। इसी तरह से इंश्योरेंस के फील्ड में एवरीथिंग इज जस्ट ए फिंगर टिप अवे। किसी जमाने में हम अंगूठा छाप थे और आज भी हम अंगूठा छाप दोबारा से हो गए, बस हमारे मोबाइल पे हमको अपना अंगूठा घुमाने की जरूरत है एंड एवरीथिंग इज देयर। ट्रेडिंग्स हैं, एग्रीगेशन बहुत जबरदस्त बढ़ गया। एग्रीगेशन मतलब जो ये आपके सामने जोमेटो और स्विगी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए जो किसी और बिजनेस को एक सर्विस प्रोवाइड करके उनके प्रोडक्ट्स को आपके घर तक पहुंचा दे रहे हैं, चाहे वो रेडी टू ईट फूड की कैटेगरी में हो या ग्रोसरीज की कैटेगरी में हो या किसी भी कैटेगरी में हो। इवन ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी एग्रीगेटर्स हैं जो आपके बिजनेस को एग्रीगेट कर दे रहे हैं। या इवन आपने ओयो होटल्स का कॉन्सेप्ट देखा होगा, या ओला कैब्स और उबर कैब्स, ऐसे बहुत सारे सब एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस को एग्रीगेट कर रहे हैं। एक्चुअली उनके पास एक आइडिया है, उनके पास एक मोबाइल ऐप है, उनके पास एक कंट्रोल रूम है जिससे वो कस्टमर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को जोड़ रहे हैं और बीच का बेनिफिट उन्हें भी मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजी हैज ट्रेमेंडस रोल टू प्ले। मैन्युफैक्चरिंग
मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ये सब आजकल सोफिस्टिकेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैनेज हो रहे हैं। रियल टाइम, इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, डाटा की स्पीड है 100 Mbps की, तो आप पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑनलाइन बैठ करके मॉनिटर कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में यदि आपने सुना हो तो गूगल मैप्स के थ्रू ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फंडिंग किया, पहले के समय में ऐसा होता था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम ही नहीं होता था। एक बड़ा मजेदार जोक मैंने सुना था कि कहीं एक डिस्ट्रिक्ट में फंड आया गवर्नमेंट का, और कुआं बनाना था या तालाब खोदने का पैसा आया, और पैसे को लोगों ने मिल बांट के खा लिया, तालाब बना ही नहीं। और किसी ने शिकायत करी तो जांच समिति आ गई। जब जांच समिति आई तो देखा कि तालाब तो बना ही नहीं है, पर जांच समिति में भी तो हमारे देश के लोग थे। जैसे लोगों ने तालाब बनाया था वैसे लोग जांच करने आ गए। तो जो जांच समिति आई उसने निर्णय लिया कि ये जो तालाब बना है ये बड़ा खतरनाक है, यहाँ के रहवासियों के लिए कईयों की जान जा सकती है, तो इस तालाब में वापस मिट्टी डलवा दी जाए, इसको भटवा दिया जाए, भरा दिया जाए। तो जो पहले थे उन्होंने तालाब बनाने का पैसा ले लिया, तालाब बना नहीं, और जो बाद में आए उन्होंने तालाब को बांटने का पैसा ले लिया, तालाब बना ही नहीं। तो इस तरह की भी हंसी मजाक थी, शायद सच में भी कहीं ये क्रूर मजाक हुआ हो किसी हिस्से में इस प्रदेश में या देश में। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण जो रियल टाइम इमेजिंग है, गूगल इमेजिंग की भी आप बात जानते हैं, और आप अपने लेवल से और कई सारे और ऑप्शंस आ चुके हैं। आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सड़क बन रही है या जो बिल्डिंग बन रही है, जरूरी नहीं कि भोपाल से रीवा आकर ही देखना पड़े, आप वहां से देख सकते हैं बैठ करके रियल टाइम। दैट टेक्नोलॉजी इज देयर। आप वहां से विजिट कर सकते हैं, ई विजिट कर सकते हैं हर चीज की। हम लोग कॉलेजेस की इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हम ई टूर कर सकते हैं उस कॉलेज का। तो ऐसे ही जो हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की एक्टिविटीज हैं, ये सब रियल टाइम सोफिस्टिकेटेड डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से मॉनिटरिंग हो रही है टेक्नोलॉजी के कारण। कस्टमर रिलेशंस, सप्लाई चेन, ये सब कुछ बहुत आसानी से वेबसाइट्स के और सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। इस हद तक कभी कभी होता है उनका कि आप कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन दे आर वेरी क्विक इन देयर सर्विसेज। आपके घर की बैटरी का यदि इन्वर्टर की बैटरी खराब है, आपने उसकी सर्विस के लिए कंप्लेन किया, मैं आपको रीवा के एक लोकल वेंडर की बात करता हूँ जो हमारे यहाँ से MBA भी किया था। जैसे आपने कंप्लेन किया, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपके पास SMS आ जाएगा, आपके पास जो सर्विस देने जा रहा है उसका फोन नंबर आ जाएगा। आपको जैसी सर्विस मिली फिर आपके पास SMS आ जाएगा, आप हमारी सर्विस को रेट कर दीजिए 1 to 5 पॉइंट में, 5-6 कैटेगरीज रख दिया। So very quick feedback is there. So technology has tremendous role to play. एक और बड़ी बात, हम जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे उसके कॉन्टेक्स्ट में, people across the globe operating in different time zones are connected 24/7. कहीं दिन है उस समय, कहीं रात है, टाइम जोन अलग अलग है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो विभिन्न देशों में काम कर रही हैं 24/7 वो काम कर रही होती हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी बहुत पुरानी, कि इंग्लैंड के झंडे के बारे में कहा जाता था कि यूनियन जैक जो है वहां, उसमें कभी सूरज नहीं डूबता। ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता, क्योंकि उनका झंडा इतनी जगह पर फहराया हुआ था कि विश्व के किसी न किसी हिस्से में उस वक्त सुबह होती थी, दिन होता था। तो ऐसे ही मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सब ऑपरेट कर रहे हैं जो डिफरेंट टाइम जोन्स में डिफरेंट कंट्रीज हैं, वो 24/7 दे आर वर्किंग। कॉल सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, आप सब जानते हैं, कई बार डे नाइट वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जबरदस्त फर्क है। देखिए, मैं आपको एक वीडियो प्ले करने की कोशिश करता हूँ यदि चल जाएगा तो, और आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे आने वाले समय में और हमारी लाइफ को प्रभावित कर सकती है।
आई होप वीडियो दिख रहा है आप लोगों को। ये कश्यप जी आवाज कैसी आ रही? कश्यप जी आवाज कैसी आ रही? कश्यप जी क्या पता वो स्लाइड चला रहे हैं और म्यूजिक चल रही है। आई होप वीडियो चल रहा है, आपको दिख रहा है वीडियो? जी सर दिख रहा है। मेरी सासू माँ बोल रही है मुझे जबलपुर जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे शाम को निकल जाऊंगी जनशताब्दी से, तो रात में पहुंच जाऊंगी, तो मुझे संडे का दिन भी मिल जाएगा। म्यूट करिए बात अभी मैं संडे को शाम को ही निकलती हूँ, तो मेरा तो संडे खराब ही हो गया ना। यहाँ आधा दिन मेरा क्या करूँ, तो वहाँ तो मेरा मंडे ही काउंट होगा जबलपुर में। तो बोली जल्दी जाइए क्या करेगी, 25 तारीख को कार्यक्रम है, मतलब हाँ काम इधर काम कौन करेगा। अंजू और नेहा अपना माइक बंद कर लेंगे। कोई नहीं करता, खुद बनाएंगे। तो यही तो समझते नहीं ना पेरेंट्स, ये अंजू पेरेंट्स शर्मा का ही बढ़ावा है। माइक बंद कर लीजिएगा। सही बात है, मेरे जैसा भी हो तो यही कर रहे हैं। क्यों आएगी, तुम्हारा कोई राइट ही नहीं रहने का। नहीं अंजू शर्मा आप सुन पा रही हैं क्या? आपका माइक ऑन है, बंद करके बात कीजिए।
सर आपका वीडियो आ रहा है, मतलब वो म्यूजिक वहीं से। ओके, तो टेक्नोलॉजी, मैंने एक वीडियो के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजी कैसे आने वाले समय में हम सबके जीवन को प्रभावित करने वाली है। मैं यदि ये वीडियो ठीक से चला होगा तो आई होप आपने देखा होगा, अदरवाइज मैं इसको शेयर कर दूंगा तो आप दूसरों को व्हाट्सएप के फॉर्म में शेयर कर सकेंगे। हम तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फोर्स है सस्टेनेबिलिटी एंड CSR। आई होप मेरी आवाज आ रही है आपको? सुनाई दे रहा है? ओके, तो 21st सेंचुरी का जो सबसे बिगेस्ट रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन मतलब जो हमने सोचा अपने जिम्मेदारी के बारे में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ से ये बात रख रहा हूं, वो है सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि अभी तक जितने बिजनेस वर्ड थे, मोस्टली हम इस प्रकृति का दोहन करने के लिए ही सजग रहे। इतना अधिक से अधिक इस प्रकृति से हम ले लें, प्रकृति को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में बहुत मिनिमल सोचा हमने। सोचा भी जिन्होंने तो बहुत कम सोचा। अभी 21st सेंचुरी में सोचना शुरू किया लोगों ने। 21st सेंचुरी के भी 20 वर्ष बीत गए। इसके पहले तक कॉर्पोरेट्स की बात करें तो 90% लोगों ने इसके बारे में सोचा ही नहीं कि जो पृथ्वी हमारी माँ है, जो हमें सब कुछ देती है, इसको बचा के भी रखना है हमको। आज के अखबार में भी मैं पढ़ रहा था, आज माँ नर्मदा की जयंती है और कितने लोग उसके जल से लाभान्वित होते हैं, उनके आंचल में पलते हैं। लेकिन हम पावर प्रोजेक्ट्स बना करके और तरह से उसका दोहन करके, उसकी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर, क्या माँ नर्मदा को लंबे समय तक इसी तरह से प्रवाहित होते रहने देंगे? हमारी आने वाली जनरेशन भी उसके जल का लाभ ले पाएगी? या इस पूरी पृथ्वी की यदि बात कर लें तो अभी आपने लेटेस्ट देखा कि कैसे एक बार फिर उत्तराखंड में जबरदस्त बाढ़ आ गई, नदियों में ग्लेशियर टूट के पिघल गए और पूरे विश्व में ही ग्लोबल वार्मिंग, और ना सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ग्लोबल कूलिंग की भी बात हो रही है। तो कहीं पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस के ऊपर पहुंच गया है और कहीं पर टेम्परेचर -20 डिग्री के पास पहुंच गया है। ये जो डिसबैलेंस हो रहा है, तो मनुष्य ने जो प्रकृति का प्रयोग किया है, जो प्रकृति का लाभ लिया है, उसमें कुछ ज्यादा ही लालच दिखाया। और कॉर्पोरेट सेक्टर ने विशेष तौर पे, मैं महात्मा गांधी की बात आपके सामने रखूंगा। महात्मा गांधी ने कभी कहा था, नेचर हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। प्रकृति के पास हम सब की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन हम में से किसी की भी लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजनेस मैनेजमेंट में जो एक बड़ी बात पूरे विश्व में अब लोग रियलाइज कर रहे हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस। हमारा बिजनेस भी प्रगति करे और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे, हमारी पृथ्वी भी संरक्षित रहे, हमारी हवा, हमारी जलवायु, धरती, आसमान, उनका संरक्षण भी आवश्यक है। सो द मैसेज इज सस्टेन प्लैनेट टू सस्टेन बिजनेस। यदि ये धरती नहीं रहेगी तो हमारा बिजनेस कहाँ रहेगा? यदि आप उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? तो इन 10 सालों में, 10-20 सालों में इस तरह के शब्दों की बहुत बात होने लगी। ग्लोबल वार्मिंग की बात होने लगी, एनर्जी सिक्योरिटी की बात होने लगी, एनर्जी ऑडिट की बात होने लगी। मैं आपको बताऊं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं रीवा, वो सोलर एनर्जी का हब बन गया मध्य प्रदेश में। जिस वक्त यहाँ पर सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश हुआ, वो विश्व के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से एक था। और दिल्ली की मेट्रो भी यहाँ के सोलर पावर से चल रही है। और अब तो पूरे मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के ही जो कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पे उनकी पानी में फ्लोटिंग यूनिट्स लगाई जा रही हैं पावर जनरेशन की। तो एनर्जी की सिक्योरिटी की बात हो रही है,
कि हम थर्मल पावर या हम कोयले को कितना यूज करेंगे, कोयला कितना है हमारे पास, लिमिटेड ही है। या पानी में जब हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं हाइड्रो पावर्स, तो उससे मां नर्मदा में ही करीब 3000 डैम बनने हैं। 3000 डैम्स का प्रोजेक्ट है, छोटे बड़े मिला करके। तो इतने सारे डैम बनने से क्या उसका प्राकृतिक प्रवाह रहेगा, क्या वहाँ जो जीव जंतु पौधे जिस तरह से फल फूल रहे वो होते रहेंगे? जो लाखों लोग वहां से रिहेबिलिटेट हुए, जिनका एम्प्लॉयमेंट चला गया, उनके लिए आप क्या करेंगे? तो एनर्जी ऑडिट की बात, सिक्योरिटी सोशल ऑडिट की बात, एनर्जी सिक्योरिटी की बात, इवन बिजनेस एथिक्स की बात, राइट एंड रॉन्ग के कंसेप्शन को दोबारा एक नजर से देखने की बात। हर किसी का सही और गलत अलग अलग है इस दुनिया में, पर कभी दूसरे का भी सही देख लीजिए, कहीं वो आपका गलत ना हो। तो मोरल्स की बात, इमोरल्स की बात, पूरे कम्युनिटी में एक इन्वेस्टमेंट करने की बात। यदि आप कॉर्पोरेट हाउस हैं तो आप समाज के बड़े बेटे की तरह हैं, परिवार के बड़े बेटे की तरह हैं। समाज के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो गवर्नमेंट ने 6% कंपलसरी कर दिया उनकी अर्निंग्स का। तो किस तरह से, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए कोविड आया, बहुत तेजी से उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दे दिया। विप्रो जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इवन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप बिल गेट्स फाउंडेशन है, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन है, जिन्होंने अपने CSR पे काफी अच्छा काम किया और कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स को मिनिमाइज करने की बात आई कि प्रकृति में आपके मौजूद होने का उल्टा असर कम से कम हो जाए। इस तरह की बातें होने लगी। ये सस्टेनेबिलिटी और CSR का कॉन्सेप्ट आया। एक स्मार्ट मैनेजमेंट की जरूरत है सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। स्मार्ट का मतलब है S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। एक स्मार्ट प्रोग्राम चाहिए जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें। पेप्सी जैसा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जिसने इंडिया में एक प्रोजेक्ट रिफ्रेश लॉन्च किया। प्रोजेक्ट रिफ्रेश का कॉन्सेप्ट ये है कि क्लीन रिवर प्रोग्राम, जितना जल हम पानी से लेंगे उससे अधिक जल, उसमें शुद्ध जल उसमें हम वापस डाल देंगे, क्लीन करके वापस उसकी क्लीनिंग कर देंगे पानी की, ताकि हमने जल भी ले लिया और उस प्रकृति को हमने और पोषित भी कर दिया। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी और CSR तीसरा कंसेप्ट, तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चौथे कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। तो चौथा कंसेप्ट है जो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज में आया, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। 21वीं सदी में ह्यूमन साइकोलॉजी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होने वाला है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाता, यू नीड ए टीम। बहुत सारे लोग मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं। तो बिजनेस के ऊपर जो इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस है, उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में। एक हम लोग कहावत, एक स्टेटमेंट बहुत चलता है, मैनेजमेंट इज मैनेजिंग मैन टैक्टफुली। इट इज इजियर सेड देन डन। उनको टैक्टफुली हैंडल करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस, जैसे आप जानते हैं अंबानी के बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। It is a conglomerate organization. It is in different types of business, different business sectors are there. पावर के सेक्टर में है, रिटेल के सेक्टर्स में है, टेक्सटाइल के सेक्टर में है, कैपिटल मार्केट के सेक्टर में है, सॉफ्टवेयर्स के सेक्टर्स में है, मोबाइल के सेक्टर में है, मोबाइल नेटवर्क्स के सेक्टर में, डिफरेंट सेक्टर्स में है। जिनका इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो हर जगह तो रह नहीं सकते। उनको हर जगह एक स्मार्ट टीम चाहिए। उनका एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। और नॉट ओनली एम्प्लॉय मैनेजमेंट की बात हो रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की भी बात है। एम्प्लॉयज का भी सेटिस्फेक्शन और कस्टमर्स का भी सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिजनेस तभी सस्टेन होता है, तभी लॉन्ग टर्म पे चलता है, यदि कस्टमर सेटिस्फाइड है। इफ योर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, योर बिजनेस विल एक्सपैंड, बिकॉज ए सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग 100 more. A satisfied customer is an unpaid salesperson of the company. Similarly about the satisfied employees, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। जो हमारा मैन पावर है उसको और स्ट्रेंथन करने की बात होती है, उसको एम्पावर करने की बात होती है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करना, उनके टैलेंट को मैनेज करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना। जैसे बिजली का ट्रांसफार्मर
लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है, वैसे एक स्मार्ट लीडर उनको लो परफॉर्मेंस से हाई परफॉर्मेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है, लो मोटिवेशन से हाई मोटिवेशन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, लो कॉन्फिडेंस से हाई कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड बहुत पाइवटल है, बहुत महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को लेकर के उनकी, और इसी तरह से कस्टमर्स के लिए भी है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूँ आइसबर्ग का। आपने छात्रों ने विशेषकर एक टाइटैनिक नाम की मूवी आई है, जरूर देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में, कि एक जहाज बहुत बड़ा जो अपनी पहली यात्रा में ही एक आइसबर्ग से टकरा जाता है, एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और पहली यात्रा में ही वो डूब जाता है, शायद कोई बचता भी नहीं है उसमें से। तो आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, जो बर्फ का पहाड़ 10% तो सतह के ऊपर दिखाई पड़ता है लेकिन 90% सतह के नीचे होता है। ये आइसबर्ग का एक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही हमारा बिहेवियर भी है, ह्यूमन बिहेवियर। जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना, जो नोन टू अदर्स है, वो हार्डली 10% है। जो अननोन टू अदर्स है, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या वैल्यूज हैं उसके अंदर, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, किस तरह के जजमेंट्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, क्या एथिक्स हैं, बिलीव्स हैं, थिंकिंग है, क्या सोच है किसी व्यक्ति की, वो 90% है, वो अंदर ही अंदर चल रही है, जो आपको मालूम भी नहीं है। तो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड है ना, यही इम्पैक्ट करता है उनके बिहेवियर को, और उनका बिहेवियर ही इम्पैक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस को, और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्मार्ट टीम बनाना, एक सक्सेसफुल टीम बनाना, एक सेटिस्फाइड टीम बनाना, ह्यूमन बिहेवियर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फोर्थ फोर्स है, और मैं आखिरी फिफ्थ फोर्स की तरफ आ रहा हूं। पांचवी जो फोर्स है वो है इकोसिस्टम, बिजनेस इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए एक और वर्ड का मैं प्रयोग कर सकता हूं, वो है नेटवर्क। थोड़ी देर में मैं आपको नेटवर्क के बारे में बात करता हूं। तो जब हम बिजनेस इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विच टुगेदर provide complex products and related services to meet end-to-end requirements of users across the value chain. तो यहाँ पर वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट है, जो आप सप्लाई चेन सुनते हैं उसी का एक बड़ा रूप है वैल्यू चेन, जहां पर डिफरेंट प्लेयर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये म्यूचुअल बेनिफिट है, विन विन की सिचुएशन है। उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, कस्टमर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है, और डिफरेंट प्लेयर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, मीडिया, टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की एक वैल्यू चेन है, और सबको बेनिफिट है इसमें। जैसे आप YouTube पे कोई भी वीडियो देख लेते हैं, लोग YouTube पे वीडियो अपलोड कर देते हैं, आप देख लेते हैं, सबका फायदा है इसमें। आपके फिंगर टिप पे है, आपको कोई भजन चाहिए, या आपको कोई मूवी देखना है, या आपको कोई जोक देखना है, कुछ भी देखना है। आजकल इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी बन चुकी है। मैं आपको एक हंसी मजाक की बात बताऊं कि मैं सुबह चाय पी रहा था, मेरा छोटा बेटा है 4th में बैठा हुआ था, और मोबाइल लेके बैठा हुआ था, उसने मोबाइल में बोला, ओके गूगल टेल मी ए जोक। कुछ बोर हो रहा होगा वो, तो उसने ऐसा बोल दिया गूगल को। और आजकल समय मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो वहां से एक फीमेल वॉइस में वेल मॉड्यूलेटेड, जो पहले से रिकॉर्डेड होगी नेचुरली, आवाज आ गई, और उसने एक जोक सुनाया। बच्चे को पसंद नहीं आया, बोला घटिया जोक। तो उसने घटिया पे कुछ बोल दिया, तो बच्चे ने बोला तुम पागल हो। तो उसने बोला पागलपन भी एक तरह की चीज होती है। और इस कन्वर्सेशन को सुन के हम लोग हंस रहे थे। अल्टीमेटली बच्चे ने सरेंडर किया, बोला अच्छा छोड़ो, मुझसे एक पहेली पूछो। फिर उसने उसको पहेली पूछी। खैर, ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा वाक्य ऐसे रख दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या है, ये वाक्य रखने की बात क्या है, गूगल को उसने यूज किया। उस बच्चे ने अपने फ्री टाइम को, जो बोर हो रहा था या कुछ फ्री टाइम था, उसने गूगल से एक फ्रेंडशिप सी कर ली, उसने अपने समय को बिताया उसके साथ में, उसने ये बेनिफिट डिराइव किया, राइट। अब गूगल को क्या बेनिफिट हुआ? गूगल को ये बेनिफिट हुआ कि उसका जब डाटा यूज हुआ तो उससे उसको वहां पे बेनिफिट मिलेगा, और जिसने वो जोक्स बनाए होंगे या जिसने जो पहेलियां सेट की होंगी उनको उनकी कॉस्ट मिली होगी। यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस पे लाइक्स कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं,
जिनका ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होता है, आपने सुना होगा, उनको यूट्यूब खुद रॉयल्टी देता है और उसका चैनल चल रहा है, तो उनका कुछ ना कुछ तो बिजनेस मॉडल होगा जिस बिजनेस मॉडल पे बेस होकर के वो अपनी बातों को आगे रखते हैं। तो मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका बेनिफिट है और कस्टमर का भी बेनिफिट है। आप घर बैठे अपनी मर्जी का देख रहे हैं, आपने वन टाइम रिचार्ज किया हुआ है, उस रिचार्ज के ऊपर फाइट है कि किसके पास कितना आएगा। और आप सब देख रहे हैं कि हमारा सबका यूसेज बढ़ रहा है इन चीज़ों का, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो बिजनेस इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग अंतिम पड़ाव में हूँ अपने वक्तव्य के। एक विद्वान व्यक्ति हुए जिनका नाम है डॉक्टर डेनिस वाइटली, उनका एक स्टेटमेंट है बहुत जबरदस्त, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन बिजनेस के बारे में। वो कहते हैं, अनलेस यू आर नेटवर्किंग यू विल सून बी नॉट वर्किंग। यदि आपके पास नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क का मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है, नेटवर्क का मतलब एक रिलेशनशिप्स डेवलप करने से है। यदि आप रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। अभी कोविड के कॉन्टेक्स्ट में भी एक बात आई बहुत जबरदस्त कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से अपने आप को चेंज करें। सब कुछ बंद हो गया था, सब प्रभावित थे, पब्लिक प्रभावित थी, बिजनेस प्रभावित थे, पूरी इकोनॉमी बैठ गई थी, -23% पे हमारी जीडीपी थी और हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन ऐसे वक्त पे कुछ समझदार लोग भी थे जिनको ये बात समझ आई कि कठिन समय में अपनों के साथ खड़े होना पड़ता है। यदि हमारे कस्टमर्स कठिन समय में हैं और हम उनसे किसी मामले में बेहतर हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, थोड़ी देर हम अपने प्रॉफिट को भूल के बात करते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत जबरदस्त मुझे लगे कोविड के काल में। लाइफबॉय का ऐड मैंने देखा। लाइफबॉय ने ऐड दिया कि हाथ धोना जरूरी है किसी भी साबुन से। ये उनके ऐड कैंपेन में था। पहली बार उन्होंने ये बोला कि हमारा ब्रांड नहीं, हाथ धोइए आप बस, हैंड वॉश इज इंपॉर्टेंट। लोगों को अपील कर गई बात। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने लाइफबॉय ही खरीदा होगा इस बात को देख करके, बिना उनके कहे। बिग बाजार एक बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया का। उस समय ईद आ रही थी, बिग बाजार ने अपनी पंचलाइन चेंज की, इबादत भी हिफाजत भी, क्योंकि ईद के समय लोग खरीदारी करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी कोशिश की कि लोग उस सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावित न करें और बिजनेस भी चलता रहे, इबादत भी और हिफाजत भी। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स ने किया। नाइकी के बारे में बोलूं, इंटरनेशनल ब्रांड है नाइकी। नाइकी ने अपनी पंचलाइन चेंज किया, प्ले फॉर वर्ल्ड टीम, आप विश्व की टीम में खेलिए। साथ में एक लाइन और लिखा, प्ले इनसाइट, प्ले फॉर वर्ल्ड टीम, प्ले इनसाइट। घर में रहिए, ऑनलाइन खेलिए, लेकिन बाहर मत निकलिए। तो यदि आप इस तरह से सोच सकते हैं, कुछ अपनापन दिखा सकते हैं, इन सबको हम बिजनेस मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, मार्केटिंग के लैंग्वेज में, इसको हम रिलेशनशिप मार्केटिंग बोलते हैं। इट्स टाइम फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग। उस रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ गया है। कठिन समय में जो खड़ा होता है, और कठिन समय तो गुजर जाता है, समय का पहिया है। कोविड भी सदी की बीमारी है, 100 साल में एक बार आती है, ये भी बीत जाएगी, इस समय गुजर जाएगा। और जो कठिन समय में साथ खड़ा होता है, लोग उसको अपना सच्चा साथी मानते हैं। ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ब्रांड इमेज को जबरदस्त आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। पहले अर्लियर इट वाज की टू सक्सेस वाज हार्ड वर्क। पुराने जमाने में बोलते थे कि कड़ी मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमारी गीता में भी कहा गया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। हार्ड वर्क की आज भी अहमियत है। कभी भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती, ईश्वर हमेशा आपको उसका अच्छा फल देता है। लेकिन आज नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि आपका नेटवर्क भी स्ट्रांग है तो आप सफल हो सकते हैं। तो ये 5 फोर्सेस हैं। मैं अपनी बात को आखिरी आधे मिनट में समअप करता हूं, जिनको आइडेंटिफाई किया हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने, और इसको मैंने अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और अपने प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आपसे अपनी बात रखने के लिए, इस पे हम चाहें तो एक पूरी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं 2-3 दिन की। 5 फोर्सेस जो हैं, 5 इश्यूज जो हैं,
वो ग्लोबलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी है जिसमें CSR भी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी है, और बिजनेस इकोसिस्टम है जिसको हम नेटवर्किंग भी कहते हैं। तो आने वाले समय में बिजनेस मैनेजमेंट को ये चीज़ें प्रभावित करने वाली हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आज का अपना सेशन खत्म करूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, ध्यानपूर्वक मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर प्रोफेसर BD पांडे जी को मुझे इस अवसर के लिए वो प्रदान करने के धन्यवाद। आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks for enriching us with your words of wisdom. The presentation was extremely helpful, informative, interesting, and relevant as well. Thank you so much for sharing your time and knowledge with us. Now, so with that, I ask for your permission for, if you have, sir, I ask for your permission if we could put on some questions before you. Sure. Most welcome. So with that, we'll go ahead to take some questions from our participants. For that, I call upon Ms. Megha Madam and Neelam Madam. Madam, if there are any questions. Megha Madam. Hello. No, ma'am. There are no questions in chat box. Thank you, Neelam Madam. Thank you. Now, yes, Aarti, I have shared my details. So since we are running short of time, I'm also scheduled for something else at 1 p.m. So if any questions and queries are there, they can be sent to me on my WhatsApp or on my email ID. Sure, sir. Sure. We'll be sending, forwarding those details in our chat box, sir. Sure. Now, I request respected Dr. A.L. Navani, sir, HOD Commerce Department and coordinator of this webinar, to present vote of thanks. Please, sir. Dr. A.L. Navani, माइक sir. ऑफ है सर आपका। Sir, you are not audible. बेटा वो प्रज्ञा को बोल दो, प्रज्ञा बोल देगी सर को। सर नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ। हाँ सर। हेलो। यस सर। हाँ, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अतुल कुमार पांडे साहब ने रियली बहुत ही विशिष्ट जानकारी दी और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझ में आने योग्य, और न केवल बिजनेस में बल्कि ऐसा लगता है कि व्यवहारिक जीवन में भी हमारे सभी क्षेत्रों में काम आने वाली चीज है। सर, मैं आपके द्वारा दी गई जानकारी, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए हृदय के अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री जेठानी साहब, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AK सिंह साहब, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नारवानी साहब और अन्य विद्वत समाज जो इससे जुड़ा हुआ, प्रतिभागीगण, विद्यार्थी और हमारी ये पूरी टीम जिसमें सभी लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, अन्य तमाम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय। बस सर फिनिश हो रहा है। हो गया सर, वोट ऑफ थैंक्स। Link for feedback forms has already been shared with you. It is mandatory to fill the feedback form to get e-certificate. Once again, before winding up this presentation, I thank our guest
speaker. Thank you, sir. Thank you so much. I do not find appropriate words for you for sharing your time and knowledge with us. Thank you. Thank you, everyone. We appreciate you being here. Thanks again for joining today. We'll see you next time. Have a blessed day, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thanks indeed. Sir, shall we call off this meeting? मीटिंग कंप्लीट हो गई बेटा, क्लोज करो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक रहा सर? थैंक यू सर। सर वो एक गलती हो गई थी शुरू में, तो मुझे लगा कि सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी सर, जी थैंक यू।